Good afternoon, students. Today we are going to discuss the second chapter of economics, people as a resource. Last chapter of economics, that was the story of Palampur village, was completed. We have covered it, and today we are picking the second chapter of economics, this one, people as a resources. In this chapter, at first, I will give you overview that which points we are going to discuss, what is the role of this chapter in our day-to-day life, how this chapter will give us extra view to think about the population and their ability, their positive and negative impact on our society. This all thing we will get to learn from this chapter. So let's start without wasting our time. So overview. At first we should take an overview. The chapter People as Resource is an effort to explain population as an asset for the economy rather than liability. What population like a asset rather than liability. जो population है वो हमारा assets है ना, capital है, बल्कि वो जिम्मेवारी नहीं है. But now it depend now how do you treat your population, कि आप अपने population को किस तरह treat करते हो. ठीक है. Population becomes human capital when there is investment made in the form of education, training and medical care. ठीक है. When people will become human capital, what is the criteria? The first requirement is the education, second is the training and third is the medical care. If you will provide these all basic things to people, then the population will become the resource that will कॉल ह्यूमन रिसोर्स. ठीक है, जिसे ह्यूमन रिसोर्स कहेंगे. ठीक है. तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के लिए किस किस फॉर्म में इन्वेस्टमेंट की जरूरत है पॉपुलेशन पे? एजुकेशन चाहिए, बढ़िया ट्रेनिंग चाहिए, स्किल मींस मेडिकल केयर जिससे हेल्थ अच्छा रहे. इन फैक्ट ह्यूमन कैपिटल इज द स्टॉक ऑफ स्किल एंड प्रोडक्टिव नॉलेज इम्बॉडीड इन देम. व्हाट इज ह्यूमन कैपिटल? ह्यूमन कैपिटल इज द स्टॉक ऑफ स्किल एंड प्रोडक्टिव नॉलेज इम्बॉडीड इन देम. मतलब कि ह्यूमन कैपिटल क्या है? ह्यूमन कैपिटल वैसा लोगों का फॉर्मेशन होगा, वैसा ग्रुप रहेगा जिसमें कि जिन पॉपुलेशन के ग्रुप में स्किल हो, ठीक है, और प्रोडक्टिव नॉलेज हो, मींस उनका नॉलेज से और दूसरे तरह का अच्छा काम किया जा सके. ठीक है. तो इस तरह का उनके पास आइडिया हो, व्यू हो, प्रोडक्टिव नॉलेज हो एंड स्किल हो किसी भी चीज का यूज करने का, टेक्नोलॉजी का एटसेट्रा, तब then that population will convert into the human capital. Okay. People as resource is a way of referring to the country's working people. What is people as a resource? What does it means? People as a resource. People as a resource, it means state the working people in term of their existing productive skill and abilities, है ना. तो ये किस चीज को शो करता? पीपल एज ए रिसोर्स की आपके पास कितना एग्जिस्टिंग प्रोडक्टिव वर्कर हैं. ठीक है. कंट्रीज में कितना वर्किंग पीपल हैं जो कि प्रोडक्टिव स्किल एंड एबिलिटीज के साथ काम कर रहे हैं. डेट इज पीपल एज अ रिसोर्सेज. लुकिंग एट द पॉपुलेशन फ्रॉम दिस प्रोडक्टिव एस्पेक्ट्स एम्फसाइजेस इट्स एबिलिटी टू कंट्रीब्यूट टू द क्रिएशन ऑफ द ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, डेट इज GNP. तो लुकिंग एट द पॉपुलेशन फ्रॉम दिस प्रोडक्टिव एस्पेक्ट, अगर हम लोग किसी पॉपुलेशन को अगर स्किल्ड कर दें और उनमें प्रोडक्टिव नॉलेज डाल दें, ठीक है, उनका थिंकिंग स्किल बढ़ा दें, उन्हें स्किल कर दें, ठीक है, तो वो किस चीज में काम करेंगे? दे विल एबिलिटी टू कंट्रीब्यूट. उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो ज्यादा बढ़ जाएगा. किस चीज के लिए? एबिलिटी टू कंट्रीब्यूट टू द क्रिएशन ऑफ ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट. उनका जो एबिलिटी है वो एबिलिटी के कारण हमारा GNP हाई रहेगा. GNP हमारा कब बढ़िया रहेगा? जब हमारा पॉपुलेशन एजुकेटेड रहेगा, स्किल रहेगा. डेट मीन्स व्हेन GNP विल हाई, व्हेन आवर populations आर स्किल्ड, ट्रेंड, दे हैव एबिलिटी. डेट मीन्स इन अ सिंपल टर्म, as much our country will have human capital, that much it will affect GNP. ठीक है.
जितना हम लोगों का ह्यूमन कैपिटल बढ़िया रहेगा उतना ज्यादा जीएनपी में कंट्रीब्यूशन होगा। ठीक है। इफ यू रिमेंबर्ड देन इन प्रीवियस क्लास, not in previous class, in earlier class once I asked about the difference between the GDP and GNP. GDP and GNP. Some of you answered. So here is the need to understand the term GNP and GDP. After this topic, as topic will go on, we will also deal with the concept of GNP and GDP in this chapter. So at first we should take the introduction of the people as a resource, then later on at the end we will discuss the GNP and GDP, how as a human capital, how being a human capital we can contribute in the GNP of our country and GDP of our country. We will get to know it, but at first we should go through topic introduction. So it's okay. Coming back to the point, then ability to contribute to creation of the gross national product. Being a resourceful people, they will contribute to the gross national product of the country. तो ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट होता क्या है? सबसे पहली बात ये जानने का अब कि ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट होता क्या है. Just here I am explaining gross national product. I am not going to discuss later, but here at the point just I am discussing this GNP, gross national product. ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, नहीं तो इसके बिना समझ में नहीं आएगा कि जीडीपी और जीएनपी में है क्या डिफरेंस. ठीक है, जीएनपी और यहां जीडीपी कर देते हैं, जीडीपी. ठीक है, and here is GNP. So GDP is a geographical concept. It's a geographical concept, and GNP is not a geographical concept. GNP में geographical location of India का काम नहीं आता है. ठीक है, GDP में इंडिया का geographical जो बाउंड्री है वो इफेक्टिव रोल प्ले करता है. तो ज्योग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से, बाउंड्री के हिसाब से देखा जाए तो जीएनपी पे इफेक्टिव नहीं है, जीडीपी पे इफेक्ट करेगा इंडिया का जो बॉर्डर है. सेकेंड चीज, जीएनपी इज सिटीजन बेस्ड. जीएनपी इज सिटीजन बेस्ड. जीएनपी जो कैलकुलेट होगा, ठीक है, जीएनपी पे जो इफेक्ट पड़ेगा, अप्स एंड डाउन जो जीएनपी पे होगा वो ओनली ड्यू टू द सिटीजन ऑफ इंडिया. बट जीडीपी, जो जीडीपी पे इंक्रीज और डिक्रीज होगा, जीडीपी का जो क्वांटिटिव वैल्यू अप्स एंड डाउन होगा, डेट विल डिपेंड ऑन रेसिडेंट ऑफ इंडिया. डेट विल डिपेंड ऑन रेसिडेंट ऑफ इंडिया. तो ये जीडीपी जीएनपी का जो टर्म में दो बता रहा हूं, इसे पाउच करके तुम लोग लिखोगे. समझे? नहीं समझोगे, नहीं लिखोगे तो इकोनॉमिक्स में परेशान होते रहोगे, क्योंकि अभी जीडीपी जीएनपी बहुत डिस्कस होता रहेगा और कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए. तो पहला चीज पॉइंट क्या लिखोगे कि जीडीपी इज ए ज्योग्राफिकल बेस्ड कंसेप्ट, दैट मीन्स बॉर्डर बेस्ड. ठीक है, जीएनपी इज नॉट बॉर्डर बेस्ड कंसेप्ट, पहला पॉइंट में लिखोगे. फिर दूसरा पॉइंट में लिखोगे जीडीपी इज रेसिडेंट बेस्ड, जीएनपी इज ओनली सिटीजन बेस्ड. ओनली जरूर लिखना, ओनली सिटीजन बेस्ड. समझे? ओनली सिटीजन बेस्ड. तो अब बात आता है, डेट वी कम टू पॉइंट डेट वी शुड नो द डिफरेंस बिटवीन द सिटीजन एंड रेसिडेंट. ये जानना जरूरी है, रेसिडेंट एंड सिटीजन. ठीक है, तभी समझ में आएगा. सो लेट मी क्लीन दिस बोर्ड. यस, नाउ पिक पेन. अब समझो, नाउ अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ सिटीजन एंड रेसिडेंट. सिटीजन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जिसे सिटीजनशिप दे चुका है ना. अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जिनका सिटीजनशिप भारत का है, जिनका सिटीजनशिप भारत का है. ठीक है, ये समझ लो, जिनका सिटीजनशिप भारत का है. डेट मीन्स कि भारत के वैसे लोग जिनके पास वोटर आईडी हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, राशन कार्ड हो, ठीक है, इस तरह का पहचान पत्र हो,
ठीक है, देखो बहुत सरलता से और बहुत ही एक कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट को इजी करके जस्ट आई एम ट्राइंग टू रिप्रेजेंट इन अ इजीएस्ट वे, नॉट इवन इजी बट इन इजीएस्ट वे, इसलिए ध्यान से समझोगे और लिखोगे, ठीक है। तो सिटीजन एंड रेसिडेंट, तो सिटीजन तुम डायरेक्ट बोल सकते हो कि इंडियन सिटीजन, जिन्हें जिन्हें अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारत का सिटीजनशिप दिया जा चुका हो, है ना, जिन्हें जिन्हें भारत का सिटीजनशिप दिया जा चुका हो। तो सिटीजनशिप का कैसे पता चलता है? सिटीजनशिप का तो अलग एक पहचान पत्र नहीं मिलता है कि सिर्फ उस पर सिटीजनशिप लिखा हुआ रहता। देन व्हाट इज द डॉक्यूमेंट्स फॉर द सिटीजनशिप्स? लाइक वोटर आईडी कार्ड, राशन कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, these all are documents of the citizen of India. These all are the basic documents of the citizen of India. समझ गए? तो they are citizen of India. It's a citizen, है ना? They are citizen. Such people will call citizen. ठीक है? Now come on resident. Resident में citizen plus foreigner सब शामिल हो जाएंगे, सब शामिल हो जाएंगे, ठीक है, सब शामिल हो जाएंगे। भारत जो देश है इसमें ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ इंडियन ही है, बहुत सारे लोग अफ्रीकन कंटिनेंट से भी आते हैं भारत काम करने, बगल में अफगानिस्तान, किर्गिस्तान, इधर से भी आते हैं भारत में काम करने, ठीक है, आते हैं ना भाई। तो और भी जगह के लोग से आते हैं, कोंगो से आते हैं, सोमालिया से आते हैं भारत में काम करने, ठीक है। अफ्रीकन कंटिनेंट का बहुत सारे लोग भारत में आके काम करते हैं, तो दे आर नॉट सिटीजन ऑफ इंडिया, वो लोग तो सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं ना है। क्यों? व्हाई? बिकॉज आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट गिवन सिटीजनशिप ऑफ डेड माइग्रेंट। वो तो माइग्रेंट है ना। अरे सिंपल सी बात है बाबा कि अगर हम लोग चले जाएंगे अमेरिका अभी काम करने, यूएस चले जाएंगे या यूरोप या रसिया चले जाएंगे, तो क्या हम लोग वहां का सिटीजन कहलाएंगे? नहीं ना भाई, सिटीजन नहीं ना कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? रेसिडेंट, कि वहां पे रह रहे हैं, रेसिडेंट है वहां के, ठीक है। तो उसी तरह इंडिया भी तो बहुत कोई आता है फॉरेनर काम करने के लिए, जॉब करने के लिए, ठीक है। तो वो फॉरेनर प्लस सिटीजन ऑफ इंडिया, दे ऑल कलेक्टिवली कॉल्ड रेसिडेंट, रेसिडेंट ऑफ इंडिया। समझ गए? आई होप नाउ कंसेप्ट इज क्लियर. What is the difference between resident and citizens? If even now you are feeling any problem, then ask me doubts in comment on WhatsApp, not on YouTube, क्योंकि YouTube पे भी बहुत कोई कमेंट करते नहीं हो, तो ask from me on WhatsApp also, ठीक है। तो again we are coming to the back to the point, GDP and GNP, GDP, GNP, जीडीपी, रेसिडेंट, जीएनपी, सिटीजन। समझे? अब देखो जो रेसिडेंट हैं, ठीक है, वो लोग इंडिया का जो बॉर्डर है, इंडिया का ये जो पूरा बॉर्डर है, इसी में काम कर रहे हैं ना, इसी में काम कर रहे हैं, ठीक है। सारे लोग जो इंडियन सिटीजन्स वो भी, जो फॉरेनर आए हैं इंडिया में वो भी, जो सारे लोग काम कर रहे हैं इंडिया के बॉर्डर के अंदर ही काम कर रहे हैं। तो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस होगा उनके थ्रू, है ना, द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड थ्रू द रेसिडेंट ऑफ इंडिया, डेट विल काउंट इन जीडीपी, डेट विल काउंट इन जीडीपी, ठीक है। एंड नाउ जीएनपी, सुनना ध्यान से, जीएनपी, व्हेन इंडियन सिटीजन डू वर्क, when Indian citizen do work in entire globe, पूरे ग्लोब में या पूरे विश्व में, भारतीय कहीं भी काम करेगा पूरे विश्व में, नॉट ओनली इन ऑन कंट्री बट ऑल्सो इन फॉरेन। अगर कोई इंडियन यूएसए में जाके काम करता है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में, ठीक है, या इराक में या कतर में या बहरीन में, ठीक है, इस तरह गल्फ कंट्री में भी जाकर काम करता है, तो वो जो वहां काम कर रहा है, वहां जॉब कर रहा है, ठीक है, उससे क्या होगा? अपना जीएनपी हाई होगा, अपना जीएनपी हाई होगा। समझे? इसलिए जीएनपी इज टोटली डिपेंड ऑन सिटीजन,
कि सिटीजन्स, इंडियन सिटीजन्स कितना जॉब कर रहे हैं, कितना देश विदेश में भी जॉब कर रहे हैं, कलेक्टिवली काउंट होता है जीएनपी में, और जीडीपी सिर्फ इंडिया के बॉर्डर के अंदर, समझे। दिस इज द मेन बेसिक डिफरेंस। तो फिर तुम ये भी बोल सकते हो जीडीपी काउंट इन अ क्लोज बॉर्डर एंड जीएनपी काउंट इज न ओपन बॉर्डर। पूरा विश्व में भारतीय लोग कहाँ कहाँ काम कर रहे हैं, उन सारे का काम करने की क्षमता जो वो लोग किए हैं उसके हिसाब पर जीएनपी प्रिपेयर होता है, और सारे लोग फॉरेनर एंड सिटीजन्स भारत के बॉर्डर के अंदर जो प्रोड्यूस किए फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, उस बेसिस पे जीडीपी तैयार होता। आई होप समझ गए होगे अब। सो नाउ रिटर्न बैक टू आवर टेक्स्ट बुक। So we were looking at the population from these productive aspects emphasizes ability to contribute to the creation of GNP। तो पॉपुलेशन हमारा जितना प्रोडक्टिव होगा, पॉपुलेशन हमारा जितना एजुकेटेड होगा, स्किल होगा, तो वो उतना दूसरे जगह जाके जॉब करेगा, नौकरी करेगा। जैसे कि इंडिया का बहुत सारे साइंटिस्ट लोग नासा भी चले जाते हैं, इंडियन सॉफ्टवेयर इंजीनियर लोग, बहुत लोग दूसरे कंट्री में भी जाकर काम करते हैं, है ना। तो इस तरह से जीएनपी हाई होगा हम लोगों का, ठीक है। लाइक अदर रिसोर्सेज पॉपुलेशन इज ऑल्सो अ ह्यूमन रिसोर्स। लाइक अदर रिसोर्सेज पॉपुलेशन इज ऑल्सो अ रिसोर्स कॉल्ड ह्यूमन रिसोर्स। दिस इज द पॉजिटिव साइड ऑफ अ लार्ज पॉपुलेशन। अब पॉपुलेशन है तो उसका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इफेक्ट है ना हमारे सोसाइटी पे, ठीक है। तो अभी हम लोग पॉजिटिव एस्पेक्ट का बात कर रहे हैं, वी आर लुकिंग पॉजिटिव साइड, ठीक है। दिस इज द पॉजिटिव साइड ऑफ लार्ज पॉपुलेशन that is often overlooked when we look only at the negative side। जब हम लोग हमेशा पॉपुलेशन को हमेशा एक बर्डन मान के रखते हैं कि अब पॉवर्टी बढ़ेगा, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ेगा, ये सब मानकर चलते हैं, फूड स्कार्सिटी होगा, ठीक है। अक्सर हम लोग नेगेटिव की ओर ही देखते हैं। बट व्हेन वी सी अबाउट द पॉजिटिव साइड ऑफ पॉपुलेशन, then we will find that by investing good education, by investing money on good education, on skills and medical health care, our population can convert into a good human resource। What? हो सकता है ना भाई ऐसा, ठीक है। We look only at the negative side, considering only the problem of providing the population with food, education, access to health facilities, when the existing human resource is further developed by becoming more educated and healthy, we call it human capital formation। और जब हम लोग ये इस पे खर्च करते हैं, एजुकेशन, हेल्थ, ये सब, तो हमारा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होता है। That adds to the productive power of country just like physical capital formation। तो अगर हम लोग अपना पॉपुलेशन पे खर्च करें तो वह भी एक कैपिटल का फॉर्मेशन ही कर रहा है, ठीक है। वर्क करेगा तो पढ़े थे ना हम लोग कि वर्क, जब 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में क्या पढ़े थे, एक एंटरप्रेन्योरशिप पढ़े थे ना, कि जो बिजनेस करते हैं प्रोफेशनल्स, तो वही ना सारी चीज को ऑपरेट करते हैं, ह्यूमन बीइंग ही सारी चीज को ऑपरेट कर रहे हैं ना। तो अगर ह्यूमन बीइंग एजुकेटेड नहीं रहेंगे तो वो सारी रिसोर्स को हाउ दे विल सिस्टमेटिकली यूज इट। विदाउट द गुड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एंड द ओपन माइंडेड education, people will not able to manage the or all factors of the production in a synchronized way, so our production will not good, so it will hamper our economic GDP and GNP parameter। समझ रहे हो ना बात। अगर पॉपुलेशन ग्रोथ जो है हमारा उसको एजुकेटेड कर दें, बढ़िया से पढ़ा लिखा दें, तो सारा काम तो वही कर रहे हैं ना भाई। मशीन है, जमीन है, पानी है, इरिगेशन, ट्यूबवेल है, सब है, लेकिन इंसान को आता ही नहीं है कुछ करने, क्या कर लेगा। पैसा से तो तुम सामान खरीद लोगे, लेकिन पैसा से किसी का दिमाग नहीं खरीद पाओगे, और पैसा से किसी का दिमाग नहीं बढ़ा पाओगे। दिमाग एक प्रॉपर ट्रेनिंग, एक चैनल के थ्रू बढ़ता है बच्चों, ठीक है। चलो दोस्त आगे बढ़ते हैं। फिर फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन के बाद इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल। इस जगह से इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल थ्रू एजुकेशन, ट्रेनिंग, मेडिकल केयर yields a return just like investment in physical capital, है ना। ह्यूमन कैपिटल इज ऑल्सो refundable as a physical capital।
जिस तरह आप फिजिकल कैपिटल में इन्वेस्ट करके रिफंड उससे रिटर्न पाते हैं, उसी तरह ह्यूमन रिसोर्स से भी पाएंगे. दिस कैन बी seen directly in the form of higher incomes earned because of higher productivity of the more educated and better trained persons, as well as the higher productivity of healthier people. सिंपल सी बात समझो ना, आप क्यों पढ़ रहे हो, मैं क्यों पढ़ा हूं, एक अच्छा ह्यूमन रिसोर्स बनने के लिए ना. ठीक है, आप लोग भी पढ़ रहे हो, कल होके कोई प्रोफेशनल किसी चीज में प्रोफेशनल कोर्स करेगा, कोई कुछ करेगा, तो एट द एंड आप लोग क्या कुछ सीख रहे हो, ट्रेंड हो रहे हो, स्किल मिल रहा है, एजुकेशन मिल रहा है. ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है, आपका एक फॉर्मेशन हो रहा है ह्यूमन कैपिटल का. ठीक है, कल को आप जब कुछ बड़ा करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं, तो वो तो सोसाइटी के लिए भी कंट्रीब्यूट है ना, सोसाइटी के लिए भी कंट्रीब्यूट है, तो वो भी तो एक रिटर्न है, सोशल एसेट्स है, दिस ऑल थिंग. और अगर उससे ज्यादा बड़ा कुछ करते हो, कोई सॉफ्टवेयर कंपनी खोल लेते हो, या कोई वैसा बिजनेस स्टेबल कर लेते हो, ठीक है, या कोई बड़ा प्रोफेशनल बन जाते हो, तो वो भी तो कंट्री का कंट्रीब्यूशन में काम आ रहा है, कंट्री एंड सोसाइटी के कंट्रीब्यूशन में. ठीक है, सो मैटर इज हियर. समझे? उम्मीद कर रहा हूं सब समझ रहे होगे. ठीक है, चलो लुक हियर इज द, एक यहां पर ये स्टेटमेंट दिया हुआ, ये स्टेटमेंट प्लानिंग कमीशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दिया था, तो उसका पेपर से काट कर यहां चिपकाया हुआ. ठीक है, तो क्या बोलते हैं प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन भाई साहब, मतलब ऑनरेबल चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन. India's green revolution is a dramatic example of how the input of greater knowledge in the form of improved production technologies can rapidly increase the productivity of scarce land resources. ये तो ह्यूमन कैपिटल ही था ना जो HYV सीट का फॉर्मेशन किया लेबोरेटरी में. अगर वो लोग उतना पढ़े लिखा नहीं होता, ह्यूमन रिसोर्स नहीं बना रहता, तो क्या वो HYV सीट्स आता ना, वो HYV सीट्स आता ना, प्रोडक्टिविटी बढ़ता. ठीक है, तो ये ह्यूमन कैपिटल का ही देन था ना. तो एक नया कंसेप्ट मिला कि इंडियन ग्रीन रिवॉल्यूशन में ह्यूमन कैपिटल भी बहुत कंट्रीब्यूट किया. किस तरह किया, अब तुम लोग को शायद कुछ आइडिया जनरेट हो रहा होगा कोरिलेट करने के लिए, कि अगर मैं कभी पूछ लूं कि हाउ ह्यूमन कैपिटल्स व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ ह्यूमन कैपिटल इन इंडियाज ग्रीन रिवॉल्यूशन, तो तुम लोग आंसर दे सकते हो कि सर द कंट्रीब्यूशन ऑफ ह्यूमन कैपिटल इन ग्रीन रिवॉल्यूशन इज इन द फॉर्म ऑफ द क्रिएशन ऑफ द HYV seeds, the HYV seeds produced in the laboratory which further experimented on the farmer's land given the great productivity. ठीक है, इस तरह से बोल सकते हो. समझ रहे हो ना? चलो वेरी गुड. इंडियाज आईटी रिवॉल्यूशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर के क्षेत्र में जो भारत का कंट्रीब्यूशन रहा है ना, India's IT revolution is a striking instance of how the importance of human capital has come to acquire a higher position than the material, plant and machinery. जब कंप्यूटर पूरा वर्ल्ड वाइड रैपिडली फैलने लगा है ना, कंप्यूटर का यूजेज होने लगा, ठीक है, तब पता चला कि ह्यूमन कैपिटल तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें कोई टेक्नीशियन चाहिए ना भाई ऑपरेट करने वाला. ठीक है, तो इस तरह से ह्यूमन कैपिटल है, तभी आपके पास आइडिया है कि कैसे उसे ऑपरेट भी करना है. गुड. चलो यहां पर देखो चुन्नी मुन्नी का आपस में कन्वर्सेशन है. ठीक है, मान लो ये कोई है, ये तुम्हारी क्लासमेट है और ये तुम्हारा क्लासमेट है. अब तुम दोनों टिफिन के टाइम पे बात कर रहे हो. क्या बात कर रहे हो कि व्हाट इज ह्यूमन रिसोर्स, इज इट लाइक लैंड और लेबर. तो ये जवाब देता है इट इज मोर देन डेट. वेरी गुड, उससे भी ज्यादा है. ठीक है, लैंड लेबर से ज्यादा वैल्यू ह्यूमन रिसोर्स का. फिर तुम पूछती हो व्हाट इज ह्यूमन कैपिटल, इज इट लाइक रुपी, पैसा और डॉलर. तो ये दोस्त जवाब देते हैं इट इज मोर देन डेट, उससे भी ज्यादा है. अच्छा चलो बढ़िया है. चलो अब कन्वर्सेशन हो गया, अब फिर से क्लास लग गया, अब फिर से आ जाओ बुक पे. ठीक है, वहां तक समझ गए. नॉट ओनली डू द मोर एजुकेटेड एंड हेल्थियर पीपल गेन थ्रू हायर इनकम, सोसाइटी ऑल्सो गेन्स in other indirect ways because the advantage of more educated and healthier population
spread to those also who themselves were not directly educated or given health care. तो देखो सिर्फ एजुकेटेड और हेल्थियर पीपल डायरेक्टली हायर इनकम के थ्रू या इस तरह के रीजन से कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे सोसाइटी को, बट ऑल्सो सोसाइटी ऑल्सो गेन्स इन अदर इनडायरेक्ट वेज. इनडायरेक्ट वेज में एडवांटेज मिलता है ह्यूमन कैपिटल का सोसाइटी को. कैसे? देखो अब होता क्या कि जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्म बन चुके हैं वो अब चाहे इंजीनियर के रूप में हो, डॉक्टर के रूप में हो, टीचर के रूप में हो या किसी भी रूप में हो, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, स्प्रेड्स टू दोज ऑल्सो हु देमसेल्व्स वेर नॉट डायरेक्टली एजुकेटेड. जो लोग डायरेक्टली एजुकेटेड नहीं है, काम नहीं कर रहे हैं वैसा, ठीक है, और गिवन हेल्थ केयर और उन्हें हेल्थ केयर प्रमोट करके, ठीक है. अगर डॉक्टर है तो हेल्थ केयर के लिए बात करेंगे, अगर वो टीचर है, इंजीनियर है तो कुछ और देखेंगे कि किस तरह हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं. स्किल देंगे टीचर लोग क्या करेंगे, स्टूडेंट्स को स्किल देंगे. एज आई एम जस्ट ट्राइंग टू प्रोवाइड यू स्किल टू कोरिलेट द चैप्टर. बस हम क्या कर रहे हैं, तुम लोग को यही सिखा रहे हैं कि एक चैप्टर को दूसरे चैप्टर से कैसे कोरिलेट करो, एक सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट से कैसे कोरिलेट करो. तो व्हाट इज दिस इज स्किल, एक स्किल है, ठीक है. In fact, human capital is one way superior to other resources like land and physical capital. एकदम human capital is one way superior. एकदम सब चीज एक तरफ, human capital एक तरफ, है ना. Other resources like land and physical capital. Human resources can make use of land and capital. Land and capital cannot become useful of its own. ठीक है, वो खुद से यूजफुल नहीं हो सकता, तो लैंड और कैपिटल को यूजफुल कौन बनाएगा, ह्यूमन. तो इसलिए ह्यूमन कैपिटल इज अ वन साइडेड कैपिटल. सारा पानी एक तरफ, ह्यूमन कैपिटल एक तरफ, ठीक है, वो वाला सीन है यहाँ पे. फॉर मेनी डिकेड्स इन इंडिया अ लार्ज पॉपुलेशन हैज बीन कंसिडर्ड अ लाइबिलिटी रेदर देन एसेट्स, ठीक है, बट लार्ज पॉपुलेशन नीड टू बी बर्डन फॉर द इकोनॉमी. देखो अगर पॉपुलेशन तुम्हारे पास बहुत है तो ठीक है, पॉपुलेशन को अगर तुम ट्रेंड नहीं कर रहे हो, एजुकेटेड नहीं कर रहे हो, स्किल नहीं कर रहे हो ना, तो पता वो बर्डन बन जाएगा कंट्री पे, समझे, बर्डन बन जाएगा. तो वही लिखा है, इट कैन बी टर्न्ड इनटू अ प्रोडक्टिव एसेट्स बाय इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल. ये कब बढ़िया हो सकता, जब ये ह्यूमन कैपिटल का फॉर्म में आ जाए. फॉर एग्जाम्पल बाय स्पेंडिंग रिसोर्सेस ऑन एजुकेशन, हेल्थ फॉर ऑल, training of industrial and agricultural workers, in the use of modern technologies, useful scientist research and so on. Means उसको ट्रेंड करना है, किसी तरह भी ट्रेंड करना है कि वो बेकार का ना बैठा रहे, ठीक है. ऐसा दिन भर नहीं कि पीपल पेड़ का नीचे चबूतरा पर बैठ के टाइम काट रहा है ना, फालतू काम करके अननेसेसरी. तो वो ह्यूमन रिसोर्स वो सब नहीं, वो क्या, वो बर्डन है कि भाई इसको किस तरह इसका जिंदगी चलाया जाए, ठीक है. सरकार भी टेंशन में रहेगी कि किस तरह ये लोग को जीवित रखा जाए, और खुद भी टेंशन में रहेगा बीइंग अ ह्यूमन कि हम कुछ कर नहीं पा रहे. क्यों? क्योंकि आपके पास स्किल नहीं है, तो आप स्किल लिए नहीं. अब जब गवर्नमेंट स्किल दे रही है तो आप चबूतरा पर बैठ के हवा खा रहे हैं पीपल पेड़ का, ठीक है. इट्स अ डायलेमा ऑफ सोसाइटी में इसी तरह का प्रॉब्लम है. ये सब प्रॉब्लम को पकड़ने सीख जाओगे ना तो सोशल स्टडीज पे बहुत अच्छा पकड़ हो जाएगा, समझे, और फिर अदर सब्जेक्ट्स को भी को रिलेट कर पाओगे, ठीक है. फिर नीचे देखो, ये स्टोरी दिया हुआ दो लोग का, स्टोरी ऑफ सकल. देयर वर टू फ्रेंड्स विलास एंड सकल, ठीक है, दो दोस्त का ये डिस्कशन दिया हुआ है, ठीक है. इसमें ये लोग डिस्कस करेगा और पता करेगा कि प्रॉब्लम क्या है गांव का, सोसाइटी का. ये देखो स्टोरी ऑफ विलास एंड सकल, किस तरह गांव का पिक्चर फिगर आउट किया गया हुआ है एक साइड, और एक साइड टाउनशिप का किया हुआ, ठीक है. तो आज हम लोग यहीं पर रखते हैं, ह्यूमन कैपिटल को अच्छे से समझोगे. देखो यहाँ पर दिया हुआ एग्जाम्पल, डॉक्टर्स, टीचर्स, इंजीनियर, टेलर, ऑल आर ह्यूमन कैपिटल, ठीक है. तो अभी जो भी पढ़े हैं उस चीज को तुम लोग घर पे बैठ के उसका नोट्स बना लो, जीडीपी जीएनपी का नोट्स बना लो, ये सब वगैरह पिछले क्लास में और जो पीछे का लेक्चर्स है वो सब का सारा नोट्स अपडेट कर लो, ठीक है. क्योंकि स्कूल खुलने के बाद हम बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में टेस्ट कंडक्ट कर लेंगे, पिछला सारा पढ़ाया हुआ, ठीक है.
तो इस तरह से मैं करूँगा। और सारे चीज़ को मल्टीपल रिवीजन करो, ध्यान रखो कि एक चीज़ को बार बार पढ़ना, तब परसेंटेज बढ़ता है। ठीक है, जो टॉपर्स होता है ना वो कुछ अलग नहीं करता, वो बस यही करता है कि जो चीज़ पढ़ चुके हैं उसको और बढ़िया से पढ़ें, रिवाइज करें बार बार। ठीक है, और अगर तुम लोगों का किसी का इंग्लिश ग्रामर खराब है, अगर उसको लिखने में प्रॉब्लम होती है, लिख नहीं पाता है, तो वो घर पे अभी टाइम है, अपना ग्रामर सुधार ले, लिखने का एबिलिटी बढ़ा ले, क्योंकि अब आपको अपना मन से लिखना होगा। और अपना मन से लिखने के लिए थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज ऑफ ग्रामर होना चाहिए कि वर्ड को यूज़ कैसे करेंगे, तभी नंबर आ पाएगा, वो चाहे सोशल स्टडीज हो या साइंस हो। समझे? तो ये सब सारा बेसिक काम कीजिए, जीडीपी जीएनपी समझा दिए हैं, रिवाइज कीजिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू।